Lecture number 15, Unit 2, Chapter Simple Stresses and Strain. Today's topic, Types of Stress. Let us see different types of stress. Stress. When a body of elastic material is acted upon by an axial force, then body undergoes some deformation. The force of resistance offered by the body against deformation per unit cross-section area is called as stress. It is denoted by letter sigma. We can define it as the internal resisting force developed per unit cross-section area. It is also called normal stress. Let's see and understand with the help of a diagram. Here you see a diagram, a bar, we can call it a member, we can call it as a body. In blue color, you see two arrows, opposite direction, P, we called it as force. In red or maroon line, across the length is the centroidal x-axis. But the force is along the centroidal axis. Now, this stress is acting on its side face or cross-section area. Okay, so we have a force acting perpendicular to cross-section area or acting axially. So this is force acting on perpendicular area. So then what is stress? Let's see another slide. Here you see when the body or the member is being pulled in both the direction, internally the member resists the pull. This internal resisting force is nothing but stress. It's nothing but stress. Okay, we are saying it as a force, but stress is force upon per unit area. So let's see this diagram. We have the section cut off axially and we have cut the section cross-sectionally, and internally we see three arrows and three arrows both towards each other. So this is resisting the force. I hope you understood the concept. ठीक है, तो जैसे हम देखें ये मेंबर है, ओके, दोनों साइड से पुल हो रहा है और इंटरनली मेंबर ये पुल को अपोज कर रहा है, इंटरनली ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. लेफ्ट साइड का आप पीस देखिए, उसमें एरो पी फोर्स बाहर हो रहा है, तो अंदर के बाजू से जहां ये कट किया गया है वहां इंटरनली तीन छोटे छोटे एरोस ब्लू कलर में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. तो ये मेटल या बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है. जैसे हम टग ऑफ वॉर में रस्सी दोनों बाजू खींचते हैं तो रस्सी तनी जाती है दोनों बाजू से, लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि इंटरनली वो रस्सी अपने बॉडी के प्रॉपर्टीज के वजह से रेजिस्ट करती है. तो इसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग. नेक्स्ट,
this is again the same explanation. Stress is the internal resisting force per unit area of cross section, also called as normal stress. Also called as normal stress. Mathematically, stress is equal to internal resisting force divided by area of cross section. Stress is equal to applied force P divided by area of cross section A. Next, now we have understood stress. It is internal resistance to the external force applied. This internal resistance is the resistance of the body. Now we will understand type of stresses. The type of stresses depend upon the area affected by the force. Hence, there are basically three types of stresses, namely, number one, direct stress or normal stress. In direct stress or normal stress, there are two types: A, tensile stress; B, compressive stress. Next, the second type of stress is shear stress. The third type, bending stress. Direct stress or normal stress. The stress which acts normal to the plane on which the force acts axially are called as direct or normal stress. There are two types of direct stress: A, tensile stress; B, compressive stress. Let's see the tensile stress. Tensile stress. When two equal and opposite pull P is applied on the member, then member or body is subjected to tension, and stress is so developed into the body is called as tensile stress. The length of body increase due to tensile stress. Sign convention: generally, tensile stress is taken as positive. With the help of this slide, we will try to understand tensile stress. हमने देखा है पहले नॉर्मल स्ट्रेस में, वही उसी का उदाहरण है टेंसाइल स्ट्रेस। बस इसमें दोनों फोर्सेस जो है वो टेंशन फोर्स है, दोनों फोर्स टेंशन है, यानी दोनों फोर्स P बॉडी मेंबर पे एक्ट हो रहे। ब्लू कलर एरो दिखाया है, दोनों exactly opposite to each other or away from each other, away from each other। ठीक है, एक दिशा में पुल कर रहा है, दूसरा दूसरे दिशा में इसे खींचा जा रहा है, इसे खींचा जा रहा है। जैसे रोप में होता है, टग ऑफ वॉर में रोप में होता है, उसी प्रकार यहाँ है। इसीलिए दोनों तरफ खींचा जाता है तो इसकी लेंथ बढ़ती है। अब इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर ही है, साथ ही साथ ये एक्ट एक्सियल, यानी इसका जो हम रेड लाइन में एक्सिस देखते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये वैसे ऐड कर रहा है, तो ये एक्सियली ऐड कर रहा है, ये एक्सियली ऐड कर रहा है। हॉरिजॉन्टल रेड लाइन,
हॉरिजॉन्टल रेडियल लाइन, ये है उसका एक्सिस, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, या इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड कर रहा है। नेक्स्ट इज compressive stress. When two equal and opposite push P is applied on the body or a member, then member or body is subjected to compression and stress so developed into the body is called as compressive stress. Length of body decreases due to compressive stress. Sign convention. Compressive stress is generally taken as negative. Now we have this diagram. In this diagram, forces again with blue. Arrow indicates the direction of force, which is opposite to each other but towards each other. यहाँ पे दोनों फोर्स एरो से दर्शाया गया है। यहाँ दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर जा रहे हैं और दोनों फोर्स जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस कह सकते हैं, यहाँ पे जो लाल रंग से दिखाया गया है, लाल रंग की स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है, उसी पे कॉन्साइड हो रहा है, उसी पे कॉन्साइड हो रहा है। तो जब हम कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, उसका दो पार्ट, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट स्ट्रेस क्यों? क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसके एक्सिस से कॉन्साइड हो रहा है, या वो वही लाइन पे है जो एक्सिस पे है। और इसे हम कॉम्प्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों फोर्स अंदर के बाजू पुश कर रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इसे अंदर के बाजू पुश कर रहा है। इससे क्या होता है? इससे इसकी लेंथ छोटी होती है, इसकी बॉडी की जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से छोटी हो जाने की शक्यता है। नेक्स्ट, shear stress. This is second type of stress. पहले direct था, अब shear. When equal and opposite force acts tangentially on a body across the resisting section, then the body tends to shear off or slide across the section. In such case, the stress so developed in the body is called as shear stress, which is denoted by Q or tau. Q or tau. SI unit of shear stress is Newton per mm square. Newton per mm square or MPa. MPa. In this diagram, what we have got two plates, plate S and plate T. Two opposite forces, away forces is applied, P on plate S in left direction, P on plate T in right direction. These two plates is hold together with a rivet. दो प्लेट है, प्लेट S, प्लेट T. प्लेट S पे एक फोर्स है जो उसे लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा रहा है, प्लेट T पे एक फोर्स है नीचे के बाजू जो उसे राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विरुद्ध है और एक दूसरे को दूर जा रहे हैं। अब ये दो प्लेट
S और प्लेट T एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक रिवेट की तरह, एक रिवेट के द्वारा। बीच में जो दिख रहा है आपको एक रिवेट है, ठीक है। जैसे नट बोल्ट अरेंजमेंट रखते हैं दो प्लेट को फिट करने के लिए, वैसे ये रिवेट अरेंजमेंट है। अब इसका क्या एक्शन होता है देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखें दोनों फोर्स P अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की वजह से रिवेट जो है उस पे शेयर फोर्स एक्ट होता है। ये फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ता है। अब ये रिवेट तब तक इंटैक्ट, मजबूत या डिफॉर्म या फेल नहीं होता है जब तक इसका जो इंटरनल परमिसिबल स्ट्रेस है, यानी इसका इंटरनल बर्दाश्त करने की, शेयर स्ट्रेस बर्दाश्त करने की जो शक्ति है या स्ट्रेस है, वो तब तक वो बर्दाश्त करता है। जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस बढ़ते रहता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी बढ़ता है, लेकिन इंटरनल एक लिमिट तक होता है। उस लिमिट पार करने के बाद वो फेल हो जाता है, यानी ब्रेक होता है या टियर होता है या कट होता है। यहां हम देखते हैं कि पिछले स्लाइड में पूरा कंप्लीट एक पीस रिवेट था। अब रिवेट बीच से कटा गया है, तो ऊपर की प्लेट में आधा रिवेट है, नीचे की प्लेट में आधा रिवेट है, यानी ये कटा गया है। कैसे कटा गया है? ये अलोंग द क्रॉस सेक्शन पे फोर्स एक्ट हुआ है, ठीक है। रिवेट है उसके क्रॉस सेक्शन, यानी फोर्स जो है वो जहां फेल हुआ है वो है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको टेंजेंशियल है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को टेंजेंशियल है, ओके। सो शियर स्ट्रेस में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो मेंबर के क्रॉस सेक्शन को टेंजेंशियल होता है, मेंबर के क्रॉस सेक्शन को टेंजेंशियल होता है। हमने पिछले लेक्चर में ये समझने के लिए, शियर फोर्स समझने के लिए हमने ब्रेड के कंप्लीट लोफ का उदाहरण लिया था। जब हम देखते हैं कि कंप्लीट ब्रेड जिसका पीसेस ना किया गया हो, या मान लीजिए ब्रेड की जगह ऐसा अखंड केक हमने लिया है, हम जब चाकू से वो केक को काटते हैं तो क्या होता है? केक कटता है स्लाइस में, केक कटता है स्लाइस में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें और इमेजिन करें, जैसे चाकू काटे जाता है स्लाइस को, तो धीरे धीरे चाकू अंदर जाता है, धीरे धीरे चाकू कटता है वो केक को। अब चाकू कैसे काटता है? चाकू और इमेजिन कीजिए और केक का क्रॉस सेक्शन इमेजिन कीजिए, एक दूसरे को टेंजेंशियल है, एक दूसरे को टेंजेंशियल है। केक का क्रॉस सेक्शन को चाकू टच करके टेंजेंशियली टच करके जाता है, टेंजेंशियली टच करके जाता है। समझ रहे आप? यानी चाकू एक और उसका क्रॉस सेक्शन एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे टच करके जाता है इसलिए टेंजेंशियली कहा जाता है, टच करके जाता है इसलिए टेंजेंशियली कहा जाता है। तो ये हो गया शेयर। डायरेक्ट अलग है, डायरेक्ट में क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर था फोर्स, डायरेक्ट में क्रॉस सेक्शन को फोर्स परपेंडिकुलर था, यहां पे क्रॉस सेक्शन को टेंजेंशियल है, क्रॉस सेक्शन को टेंजेंशियल है। नेक्स्ट, mathematically shear stress donated by Q is equal to shear force P divided by area of shear A. Q is equal to P divided by A.
इज इक्वल टू पी। एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। shear स्ट्रेस का दूसरा प्रकार है पंचिंग shear। पंचिंग shear, when a hole is punched in a steel plate having thickness and the shear force subjected due to punching acts tangentially to the area circumference of hole is called as punching shear. Is called as punching shear. Let's see the diagram. In this diagram we have a body. सेंटर में देखिए एक सर्कल है और उसके आजू बाजू ब्लू कलर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरोस दिखाए गए। हम जब पंच करते हैं तो हमारे हाथ में एक हथौड़ा होता है और एक सर्कुलर रॉड मान लीजिए। हम हथौड़ा उस रॉड पे मारते हैं, बॉडी पे रख के हथौड़े से रॉड पे मारते हैं और रॉड पंच करता है बॉडी के अंदर। तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये होल बन रहा है, ये होल बन रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम हैमर मारते रॉड पे, रॉड जो है ये बॉडी पे उस होल जहां है वहां रखा गया है और वो धीरे धीरे उसमें होल करता है। होल जब करता है यानी क्या होता है, रॉड का जो सरकमफ्रेंस है वो एक सर्कुलर या shear फोर्स से एक्ट करता है, यानी उसके रॉड के सरकमफ्रेंस पे shear फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो यहां देखिए P इज इक्वल टू shear फोर्स पंच द होल, shear फोर्स पंच द होल। ठीक है, जो होल बन रहा है वो डायमीटर d का है। बॉडी की थिकनेस t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। आप इमेजिन कर सकते हैं किस प्रकार से एक्शन हो रहा है और स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। मैथमेटिकली shear stress Q is equal to shear force P divided by area of shear A. Q is equal to P divided by A is equal to P divided by pi dt. Pi dt. Pi dt ये एरिया है जहां पे shear फोर्स एक्ट हो रहा है। हमने ये एरिया कैसे निकाला है, पिछले डायग्राम में देखे, सर्कल है तो पाई डी सरकमफ्रेंस हो गया और अंदर होल जा रहा है तो वो कितना होल बनता है, थिकनेस टी तक, तो टी इंटू टी यानी सर्कमफ्रेंस इंटू टी, यानी ये होल का इंटरनल फेस एरिया हो रहा है, होल का इंटरनल फेस एरिया हो रहा है। तो इस प्रकार से ये shear स्ट्रेस हो गया। Where Q is equal to shear stress, D diameter of hole, T thickness of plate, pi D circumference of hole, P shear force, A shear area is pi dt, is pi dt. I hope you understood this. Third, bending stress. In case of column and C-clamp, when an eccentric load acts on a body, then stress is so developed is called as bending stress. In case of beam, when the load acts
on a transverse section, the resistance offered by the internal stress to bending is called as bending stress. बेंडिंग स्ट्रेस का उदाहरण हम आगे के यूनिट्स में हम समझेंगे. अभी सिर्फ इतना डेफिनेशन काफी. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. स्ट्रेस पॉइंट्स क्या समझना है. स्ट्रेस यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फर्स्ट टाइप डायरेक्ट. जब कहते हैं डायरेक्ट तो फोर्स इज परपेंडिकुलर एंड force line of action of force is coaxial या line of action of force is along the axis. जब shear कहते हैं तो अगेन फोर्स है बट पैरेलल और स्पेसिफिकली टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. होप ये दिमाग में बैठा लो, ये इमेज करो, दिमाग में बिठा लो, आगे काम आएगा. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.